Students, today we'll discuss the topic that is the isomerism in amines. And all of you know the meaning of isomerism. ये simply एक phenomena है जिसमें compound will show the different structural arrangement of atoms and they will have the same molecular formula that you know. तो बेटा जो isomerism है, this is basically of two types. Number one is structural isomerism. Second we will study, that is you can say stereoisomerism और space isomerism. In this basically ये दो टाइप का होता है. Number one is geometrical isomerism GI, second is optical isomerism. तो अमीन्स में बेसिकली हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी नहीं करना है, और यहाँ से वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो आज का जो हम बेसिकली स्टडी है दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी विल स्टडी द ऑप्टिकल एक्टिविटी वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अमीन्स. सो बेटा इन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अमीन्स शो नंबर वन chain isomerism. Now what is the meaning of chain isomerism? As you know that in the chain isomerism the number of carbon atom in the chain are different. जो आपकी चेन में कार्बन एटम है बेटा वो डिफरेंट होंगे. क्लियर? सो लेट अस सी वन एग्जांपल. इफ आई विल गिव यू, दिस इज butane 1 amine CH3 CH2 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 NH2. This is butane 1 amine and it contains 4 carbon chain. Now butane 1 amine. अब इसमें if I made a 3 carbon chain like that, this one. Now this is the chain. This chain is of 3 carbon atom. As far as IUPAC name is concerned, ये आपका substituent है. Numbering from this side 1 2 3. So it is 2 methyl propane 1 amine. So इन दोनों में basically क्या है difference है? In the first the chain is of 4 carbon atom. Here the chain is of 3 carbon atom. So this we have done the first, that is a chain isomerism. Second, the amine shows position isomerism. In the position isomerism, the position of functional group is different. जो फंक्शन ग्रुप है बेटा उसकी पोजीशन डिफरेंट है. इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 NH2. This is propane 1 amine and second example is अगर इस NH2 को हम यहाँ पर कर दें at position number 2, now the name is propane 2 amine. So basically इन दोनों में क्या चेंज है? Here is the functional group is on the first carbon atom, here the functional group is on the second carbon atom. Clear? After that, third type of structural isomerism shown by amine is metamerism. So in the metamerism what they will show? They will show different alkyl group around nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम के अराउंड जो बेटा आपके अल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे. अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH CH2 CH3. दिस इज डाई इथाइलमीन. हेयर ऑन बोथ द साइड्स हमारा इथाइल ग्रुप है. अगर मैं इसका एक आइसोमर ड्रॉ करूँ, जस्ट सी केयरफुली, दिस इज CH3 NH CH2 CH2 CH3. Now this is methyl group, this is propyl group, so its name is methyl propyl
अमीन। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर जो आपके अल्काइल ग्रुप थे वो इथाइल थे बेसिकली, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल। तो जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो गया आपका, डिफरेंट। सो दिस इज सेड टू बी द मेटामेरिज्म। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शोन बाय अमीन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो बेटा दे शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बाय शोइंग प्राइमरी अमीन, secondary amine, and you can say tertiary amine. Primary amine, you know the functional group is NH2. Secondary amine में जो functional group आएगा वो NH आएगा, और टर्शरी अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो N आएगा। तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस तो सेम जाएंगी, ज़्यादा डिफरेंस वेरी नहीं करेगा, बट जो थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन है या नेचर भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत चेंज आया है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट हो रहा है NH2 से, here the functional group is represented by NH and here the functional group is represented by N. So let us take one example. अगर हम example लेके चलें, CH3 CH2 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 NH2, this is primary amine. Clear? चलिए अब अगर secondary amine just see out, CH3 CH2 NH CH2 CH3, this is now secondary amine. Here the name is 1 2 3 4 butylamine, properly we will say N-butylamine. यहाँ पर जो नेम था बेटा secondary amine में, on both sides ethyl group is there, so it is diethylamine. और अगर tertiary बनाए then N CH3 CH3 CH2 CH3. now बेटा ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, सो इट इज इथाइल डाईमिथाइल अमीन। अब देखिए इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट नेचर क्या डिफरेंट हो गई। यहाँ NH2 फंक्शनल ग्रुप है, सो इट इज अ प्राइमरी अमीन, हियर NH फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ सेकेंडरी अमीन, हियर N इज द फंक्शनल ग्रुप, सो इट विल बी अ टर्शरी अमीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अमीन आपको 4 तरह के आइसोमेरिज्म शो करता है। नंबर 1 इट शो द चेन आइसोमेरिज्म, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके चेन में डिफर करेंगे। सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगी दैट विल बी डिफरेंट। मेटामेरिज्म में जो अल्काइल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा अराउंड द नाइट्रोजन आइटम। फंक्शनल आइसोमेरिज्म यू नो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड यू कैन से द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अमीन्स. Now we will discuss one question related to structural isomerism. The question is, draw the structural isomers of amines having molecular formula. So first beta we have given C4H11N, and second we have to do that is C7H9N. So basically थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके कार्बन एटम 6 या more than 6 हैं, then there may be the, or you can say mostly there is a presence of benzene ring. इस चीज को ध्यान रखना है when the carbon atom are 6 or मोर देन 6, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नाउ विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। बिफोर आई ड्रॉ दिस मैं क्लियर कर दूं कि आइसोमर में ड्रॉ कैसे करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ड्रॉ करना है। फिर हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम चेन आइसोमर ड्रॉ करने तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन उनको भी डिफर करना है। सो बाय कंसिडरिंग दीज ऑल, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे C4H11N से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जो आपका आएगा मेन 4 कार्बन है, सो 4 कार्बन अमीन CH3 CH2 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 NH2, इट इज ब्यूटेन 1 अमीन, बेसिकली एक प्राइमरी अमीन है। क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, इस NH2 की पोजीशन को चेंज करना है। देन CH3 CH2 CHNH2 CH3, this is now butane 2 amine.
ये आपका ब्यूटेन 2 अमीन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें देखिए 4 कार्बन चेन के साथ मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें मेरे को एक कार्बन एटम कम करना है, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन डिफर करोगे। सो अगर आप चेन को 3 कार्बन एटम की करते हो, जस्ट लाइक दैट 1 2 3 कार्बन की चेन हमने करी, तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप आपको यहाँ पे अटैच करना होगा CH3, दिस विल CH2 NH2। सो दिस इज नाउ, ये आपकी चेन आएगी 1 2 3, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। क्लियर टू ऑल ऑफ। ये हमने क्या किया बेटा, एक कार्बन एटम उसमें हमने कम किया। देखो बेसिकली स्टार्टिंग तो आपको करनी है चेन आइसोमेरिज्म से। क्या प्राइमरी अमीन को ड्रॉ करो, आपने 4 कार्बन की चेन ड्रॉ करी, 4 से आप किस पे आए, 3 पे आए। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 1 पे है इसको पोजीशन 2 पे ला सकते हैं। सो दिस विल बी CH3C NH2, ये बेटा CH3 दिस इज नाउ, ये आपकी चेन हो जाएगी मेन। इफ आई नोटेड डाउन द IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। क्लियर, ये आपकी 3 कार्बन चेन के साथ। सो दिस वी हैव ड्रॉन द 4 आइसोमर्स। अब इसके बाद क्या करना है, ये आपका प्राइमरी अमीन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन चुकी है। प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन, 4 कार्बन चेन 3 कार्बन चेन। अब थोड़ा वर्कआउट हम करते हैं सेकेंडरी अमीन पे, कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ सेकेंडरी अमीन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। ठीक है, जस्ट सी आउट। तो सेकेंडरी अमीन में 4 कार्बन है। फर्स्ट वी विल डू CH3 CH2 CH2 NH CH3, ये प्रोपाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, CH3 CH2 NH CH2 CH3, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हमने ड्रॉ करी। यहाँ पर एक प्रोपाइल एक मिथाइल ग्रुप था। हेयर बोथ द साइड्स कौन से ग्रुप हैं आपके, इथाइल ग्रुप है सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और की जा सकती है, ये आपका N प्रोपाइल है। तो इस N प्रोपाइल की जगह अगर मैं आइसो प्रोपाइल कर दूं CH3 CH3 NH CH3, ये आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी आ गई। सो सेकेंडरी अमीन में हमें बेसिकली 3 आइसोमर मिले। देखिए प्राइमरी अमीन में मिले थे 1 2 3 4, सेकेंडरी में मिले 3। सेकेंडरी इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप को चेंज करना है। अब इसका नाम क्या है, इट इज, अगर हम नॉर्मली लिखें मिथाइल N प्रोपाइलमीन, the next will be isopropyl methylamine, and बेटा this is डाईइथाइलमीन। तो थोड़ा अमीन के बारे में क्लियर हुआ होगा कि हमें काम कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं प्राइमरी अमीन में। प्राइमरी अमीन में सबसे बड़ी चेन से स्टार्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है, चेन को धीरे धीरे कम करना है और मिनिमम 3 तक आपको लेके आना है। 3 से नीचे पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। देन हम गए सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में क्या करना, आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप चेंज करने। सो बाय चेंजिंग द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यू विल गेट योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब टर्शियरी अमीन की भी पॉसिबिलिटी है। सो आई ड्रॉ द टर्शियरी अमीन हेयर। इसी में टर्शियरी अमीन में N, अब यहाँ पे टोटल कार्बन आइटम आपके 4 हैं, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी आएगी बेटा, 2 मिथाइल ग्रुप और ये आपका इथाइल ग्रुप। क्लियर, सो इट विल बी इथाइल डाईमिथाइल अमीन। दिस इज बेसिकली अ टर्शियरी अमीन। तो टोटल जो हमारे बने इसमें आइसोमर, वी गॉट 8 आइसोमर। प्राइमरी अमीन में 4 मिले थे, 1 2 3 4। सेकेंडरी में 3, सो ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये नंबर 7, और टर्शरी में 1। तो सिंपल अब ध्यान करना है, थोड़ा सा लेआउट में एक बार वैसे ही बताऊंगा आपको कि कैसे है, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। जब किसी एलिफेटिक अमीन के आइसोमर ड्रॉ करो, देन यू हैव टू कीप इन माइंड, जस्ट सी अ लुक। एलिफेटिक अमीन में सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेन यू ड्रॉ द आइसोमर
of aliphatic amine, then keep in mind, सबसे पहले आपको करना है प्राइमरी अमीन, फिर बेटा आपको सेकेंडरी अमीन, और फिर बेटा आपको टर्शियरी अमीन। जब आप प्राइमरी अमीन करोगे तो प्राइमरी अमीन में बेटा आपको चेन आइसोमर भी करना है, ठीक है। चेन आइसोमर के साथ आपको पोजीशन आइसोमर भी करना है, पोजीशन भी चेंज करनी है। सेम सेकेंडरी अमीन में भी आपको, जब आप सेकेंडरी अमीन करोगे तो सेकेंडरी अमीन में एक चीज़ का ध्यान रखना, आप पोजीशन आइसोमर भी कर सकते हो कि आपने पोजीशन को चेंज किया है। ये थोड़ा सा इसमें बहुत बेसिकली वर्कआउट करना होगा सेकेंडरी अमीन में, पोजीशन कैसे चेंज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, सेकेंडरी अमीन जब आप ड्रॉ करोगे तो सेकेंडरी अमीन में पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, सेकेंडली कार्बन चेन में भी हम डिफर कर सकते हैं। और टर्शियरी अमीन में क्या करना है आपको, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं उनकी नेचर को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली अगर इस पे वर्कआउट करोगे तो आपके आइसोमर बहुत इजीली बन जाएंगे। बट एक पैटर्न ध्यान रखो, पहले प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी। जब आपके ये बन जाए तो उसमें चेन पोजीशन आपको लगाना है और टर्शियरी में सिर्फ आपको अल्काइल ग्रुप को चेंज करना है। सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल, जस्ट सी आउट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में C7H9N। अब यहां पर देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बन एटम व्हेनेवर दीज आर 6 और मोर देन 6, तो एक पॉसिबिलिटी बन के आती है कि वी आर डीलिंग इन एरोमेटिक सिस्टम, या एक मान के चले एरोमेटिक भी हटाएं तो हम वर्कआउट कर रहे हैं बेंजीन वाले सिस्टम में। तो जब भी आप बेंजीन वाले सिस्टम में वर्कआउट करोगे तो आपके आइसोमर दो पार्ट में डिवाइड होंगे। नंबर 1 अराइल अमीन्स, नंबर 2 अराइल अल्काइल अमीन्स। ये आपने स्टडी कर रखा है, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था वहाँ पर भी हमने डीप स्टडी किया था इसको। तो अराइल अमीन में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ेगा, अराइल अल्काइल अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइड चेन से जुड़ेगा। तो C7H9N के अराइल अमीन्स वाले देखते हैं। सो ये 6 कार्बन एटम आपके ठीक है। अब इसमें NH2 से तो अमीन हो गया और कार्बन से CH3, ये आपका फर्स्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब इसमें मैं इस CH3 को यहां पर भी लेके आ सकता हूं, आई कैन चेंज द पोजीशन, NH2 CH3 लाइक दैट, देन लाइक दैट NH2 CH3, ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। क्लियर? अब इसके बाद ये आपके कौन से अमीन हो गए, अराइल में प्राइमरी। अब अराइल में सेकेंडरी अमीन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल। जस्ट सी आउट NHCH3। क्या इसमें टर्शियरी अमीन की पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती, ये ध्यान रखना है। तो अराइल अमीन्स में आपको वर्कआउट किया, आपने पहले पोजीशन चेंज करी, फिर आपने यहाँ पर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी, सो आई गेट द 4 आइसोमर्स। अब अराइल अल्काइल अमीन में आपको ध्यान करना है कि जो आपका NH2 ग्रुप है वो साइड चेन से अटैच होगा। सो क्योंकि एक ही कार्बन की साइड चेन है तो CH2NH2 आई गेट ओनली दैट आई से बेंजाइल अमीन। सो ये चीज ध्यान आई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो डेट विल बी बेटर फॉर यू। सो दिस वी हैड डन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन amines. The second part of the lecture, that is the stereoisomerism in amines. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा बेसिकली जो अमीन्स में हमें स्टडी करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें स्टडी करना है वेदर कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, और वी कैन से वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ठीक है, तो अभी इस चीज को ध्यान करना है। हाउ टू प्रिडिक्ट वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव।
सो इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। 2 कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, देयर इज अ chiral carbon atom, all of you know, we have done earlier also, वो कार्बन एटम जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम से अटैच्ड हो। सेकेंड कंडीशन पे वर्कआउट कीजिए। जो सेकेंड कंडीशन है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से भी काम करना है, ठीक है। द सेकेंड कंडीशन इज इफ इन केस ऑफ टर्शरी अमीन, ध्यान करना है, टर्शरी अमीन में हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ जाए, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं N, R1, R2 और R3। अगर मैंने R1, R2, R3 लिखा इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट, तो भी क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा हटाते हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव के रिगार्डिंग कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा। तो पहली कंडीशन कायरल कार्बन एटम, सेकेंडरी टर्शरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। नेक्स्ट कंडीशन क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, ना वाटर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट जिसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है ना। 4th बॉन्ड जो होगा वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे R1, R2, R3, R4 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी भी यही मेंशन करते हैं, N ऑक्साइड्स, आई राइट हियर N ऑक्साइड्स of tertiary amine with different alkyl group। तो अगर टर्शरी अमीन का फिर से मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई ड्रॉ द टर्शरी अमीन लाइक दैट, सी आउट, ये आपके टर्शरी अमीन है। यहाँ पर आई राइट N, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, और ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो दीज आर द N ऑक्साइड्स ऑफ टर्शरी अमीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। तो ये जितने भी मैंने आपको कंडीशन बताई हैं ये सारी ऑप्टिकली एक्टिव के लिए है। कायरल कार्बन एटम है, टर्शरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, और आपके N ऑक्साइड ऑफ टर्शरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। तो ऑल योर जो अमीन्स होंगे दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। क्वेश्चन इज आई विल राइट predict whether compound is optically active or inactive, यही क्वेश्चन है। तो 1 by 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है दैट इज फर्स्ट पार्ट गिवन टू अस C6H5 N positive C2H5 twice, C2H5 twice, then CH3 Br नेगेटिव। अब सबसे पहले देखिए बेटा ये कंपाउंड एक्चुअली में है क्या। नाइट्रोजन से 4 ग्रुप अटैच्ड है, सो इट इज अ क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट में मैंने क्या कहा था कि आपके चारों अल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम देखें these 2 alkyl groups are same, so this is you can say optically inactive। बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। that the first, so second now see 1 by 1 the second one given to us। second is a C6H5N CH3 C2H5 C2H5। अब ये देखिए ये आपका टर्शरी अमीन है। तो टर्शरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ऑब्वियसली दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज फिनाइल, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और वी कैन से कायरल। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव को कायरल बोल सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव को अकायरल। सेकेंड वी हैव डन। Now third example given to us is, just see out,
थर्ड इज CH3 CH2 CH2 CH3 N CH3C2H5. Again tertiary amine, these three are different alkyl group, so it is optically active or chiral. Clear? Third example. Now fourth, number 4, N CH3 C2H5 C6H5 N positive O negative. Now what is this? These are N oxide of tertiary amine. ध्यान दीजिए, ये N से 3 अल्काइल ग्रुप टर्शियरी अमीन, ऑक्सीजन लग गया तो N ऑक्साइड. अब यहाँ पर ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है, सो अगेन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और यू कैन से chiral. Okay, this is the fourth example. Now fifth example we'll discuss here. Fifth example is N CH3 C2H5 then C3H7 then C6H5CH2. This is positive and Cl negative. Now this is QAM, quaternary ammonium salt, QAS. ठीक है, so quaternary ammonium salt में what I have told you कि all the alkyl group must be different. So just see out, this is methyl, ethyl, propyl and this is benzyl, all are different, so it is optically active or chiral. So this we have done the fifth example. Clear to all of you? Now we will discuss one more example here. Number 6, butane 1-amine. So this is CH3 CH2 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 NH2. This is butane 1-amine. अब इसको अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है. क्लियर? ठीक है, और कोई भी ये नाइट्रोजन वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है. ठीक है ना, नाइट्रोजन आपको मैं क्लियर कर दूं, नाइट्रोजन किन कंडीशंस में होगा ऑप्टिकली एक्टिव? जब टर्शियरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे, या आपके एन ऑक्साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे, एन ऑक्साइड ऑफ टर्शियरी अमीन. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और आई विल से अकायरल. चलिए, नाउ द लास्ट एग्जांपल नंबर 7 that we will study, butane 2-amine. So if I draw butane 2-amine, so beta see this. Now this is chiral carbon atom, so it is optically active or chiral. अब इसमें एक चीज और करनी है, all of you know number of optical isomers 2 raised to the power n. N is number of chiral carbon atom. अब यहाँ पे chiral carbon atom 1 आया, so 2 की power 1, it has 2 optical isomers. तो ये भी ध्यान रखना है आपको. क्लियर? सो स्टूडेंट, स्टीरो आइसोमर में बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप जब आप ऑप्टिकल आइसोमर को स्टडी करोगे, व्हेन यू विल स्टडी द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना है या तो कायल कार्बन एटम होना चाहिए, अदरवाइज बी क्लियर, टर्शियरी अमीन में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एंड एन ऑक्साइड विल हैव द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप. तो ये आपने कंप्लीट किया टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. दैट्स ऑल.